Good morning, my dear students. As you are aware, we were discussing the concept soil as a resource. In this concept, we have discussed the factor affecting of soil formation. We have also discussed about the different types of soil that is found in India. And next concept that we were discussing is soil erosion. In this concept, I told you the meaning of soil erosion. What are the three parts of the soil erosion? We have already discussed it. We have already discussed about the different types of the soil erosion, that is the water erosion and the wind erosion. Water erosion, as I told you, it is further divided into two categories, that is the sheet erosion and the gully erosion. And then we were discussing the concept causes of soil erosion. As I told you, there are two causes of the soil erosion. One is responsible by the nature and second is responsible by the human activities. By the nature, we have already discussed this concept. These consist of the wind, glacier, running water, landslides, floods, and torrential rainfall. Next, we are going to discuss about the soil erosion causes that has been caused by the human activities, or what are the man-made causes of the soil erosion. In the man-made causes, actually there are main six factors that affect the soil erosion. These are our deforestation, overgrazing, construction, mining, faulty methods of agriculture, or you can say that defective method of farming. And last is our malpractices in land utilization. So today we are going to discuss from the human activities that are responsible for the soil erosion. So what are the man-made causes of the soil erosion? Please note down the main points. The very first is the deforestation. How the deforestation responsible for the soil erosion? Have a look here. With the increase in population, the pressure on forest resources is increasing with each passing day. This has resulting in reckless cutting of forests, which has led to the problem of soil erosion. Means जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमको जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्तियों के लिए जो है फॉरेस्ट की ओर जाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट की जो है बहुत ज्यादा स्पीड से जो है हम जो है कटिंग कर रही है, रेकलेस कटिंग जो है, उनकी केयरलेस कटिंग जो है, रेस कटिंग जो है वो हो रही है. अब उससे क्या होगा, roots of trees and plant bind the soil particle and regulate the flow of water. Now you are aware कि जो आपका प्लांट्स होता है उसका क्या एडवांटेज होता है कि ये आपकी प्लांट्स की ट्रीज की रूट्स को और सॉइल पार्टिकल को बाइंड करके रखता है और साथ ही साथ जो वाटर का फ्लो है उसको रेगुलेट करता है, दस सेविंग सॉइल फ्रॉम इरोजन. तो इससे क्या रहता है, आपकी जो सॉइल है वो इरोजन से बची रहती है. Therefore, deforestation invariably results in flood and soil erosion. जब हम जंगलों को ही काट देते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, तो उससे क्या रिजल्ट आता है आपका, एक तो आपका रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर नहीं होता, यानी कि फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा सोइल पार्टिकल्स को आपका जो है बाइंड नहीं करता, तो सोइल इरोजन का कारण बनता है. The large scale of damage to soil in Shivalik range, the Chos of Punjab, यानी कि जो आपका डिफोरेस्टेशन की वजह से जिन एरिया में आपका ज्यादा सोइल इरोजन होता है वो कौन से रीजन आपके, द वेरी फर्स्ट इज द शिवालिक रेंज, देन the Chos region of Punjab. I told you in the alluvial soil what are the Chos. This is the Piedmont zone of the Punjab area. Parts of Haryana and रेविन्स ऑफ मध्य प्रदेश. मैंने पहले ही आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में चंबल जो बेसिन है, चंबल नदी का जो रीजन है, वहां पे आपके डीप क्रैक्स हो जाते हैं जिनको वहां पे बैडलैंड या रेविन्स के नाम से जाना जाता है. सो मध्य प्रदेश, यूपी एंड राजस्थान इज लार्जरली ड्यू टू द deforestation. So deforestation affect the soil erosion in this manner. Second is
Overgrazing. Overgrazing, forest and grasslands provide much needed fodder for animals. यानी कि जो आपके फॉरेस्ट होते हैं और जो आपकी ग्रासलैंड होती है, ये पशुओं के लिए हमारा जो है चारे का प्रबंध करती है, यानी कि चारे का मेन सोर्स होती हैं. ड्यूरिंग दी रेनी सीजन देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रोथ, एंड एनिमल्स गेट इनफ फोडर. जब रेनी सीजन होता है तो ग्रासलैंड की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, जिससे जो है एनिमल्स को, पशुओं को जो है इनफ चारा मिल जाता है. बट ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राई पीरियड देयर इज शॉर्टेज ऑफ फोडर. लेकिन जब लंबा सूखा समय हो जाता है, यानी कि रेनफॉल आपकी नहीं होती है, तो उस समय जो है फोडर की जो शॉर्टेज है वो कमी जो है हो जाती है. एंड ग्रास इज ग्रेज टू द ग्राउंड. तो ग्राउंड पे जितनी भी घास होती है वो पशुओं के द्वारा ग्रेज कर ली जाती है, चर ली जाती है. एंड टोम आउट बाय द रूट्स बाय द एनिमल. और जब घास की कमी होती है तो एनिमल जो है उसको टोम आउट यानी कि जड़ से उखाड़ देना, यानी कि जड़ से ही जो है उसको खा लेता है. तो वो क्या करता है कि सॉइल पार्टिकल जो है उससे बाइंड होके आपके नहीं रहते हैं, यानी कि एक प्रॉपर अमाउंट में आपका पास्चरिंग नहीं हुई है, ग्रेजिंग नहीं हुई है. थर्ड फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल is the construction work. Construction of roads, building and agriculture production have resulted in large amount of soil erosion. यानी कि आप कहीं पे सड़क बनने का कार्य हो रहा है, कहीं पे मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, या एग्रीकल्चर ही प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो ये सभी जो है सोइल इरोजन का कारण बनते हैं. इट लीव्स द सॉइल सरफेस विद लिटल और नो वेजिटेशन. कैसे बनते हैं? क्योंकि इन सब की वजह से जो आपकी सोइल सरफेस होती है, इट लीव्स सॉइल सरफेस विद लिटल. इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल सरफेस के ऊपर, यानी कि हमारी लैंड के ऊपर जो है या तो बहुत कम वेजिटेशन रह जाती है या नो वेजिटेशन, कोई वेजिटेशन नहीं रहती है. प्रोवाइड्स अ प्राइम अपॉर्चुनिटी फॉर सॉइल टू बी इरोडेड. और अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा कि सॉइल को ये प्राइम अपॉर्चुनिटी देती है कि वो इरोड हो जाए बाय द विंड और वाटर मूविंग अक्रॉस द सॉइल सरफेस. तो उससे जो है सोइल सरफेस जो है वो विंड और वाटर के द्वारा अपने साथ वॉश आउट या ब्लो करके ली जाती है. नेक्स्ट फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोइल इरोजन इज माइनिंग. माइनिंग एक्टिविटीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल इरोजन. इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जब माइनिंग को हम, मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से, लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल आर मूव्ड. उससे जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो आपका अमाउंट जो है वो निकलता है. दीज मटेरियल्स कंटेन हार्मफुल एलिमेंट्स. ये जो मटेरियल आपके होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल एलिमेंट्स आपके रखते हैं. दीज एलिमेंट्स आर लाइकली टू बी सेट फ्री थ्रू माइनिंग प्रोसेस. ये जो आपके एलिमेंट्स जो होते हैं ये माइनिंग प्रोसेस के द्वारा जो है फ्री हो जाते हैं बिल्कुल. और ये क्या होते हैं, एक लेयर बना लेते हैं आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर, आपकी सॉइल के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं. देयरफॉर मे कंटेमिनेट दी सराउंडिंग सॉइल. तो इनके आसपास की जो सॉइल होती है वो कंटेमिनेट हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, डैमेज हो जाती है. माइनिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफोरेस्टेशन एंड कॉजेज इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस. माइनिंग की वजह से आपका जो है डिफोरेस्टेशन भी होता है और साथ साथ जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस भी क्रिएट होते हैं. Next factor is the faulty method of agriculture. Much of the soil erosion in India is caused by the faulty method of agriculture. The most outstanding are, यानी कि जो faulty methods हैं वो कौन कौन से हैं आपके? Wrong plowing, lack of crop rotation and practice of shifting cultivation. ये main causes हैं आपके जो आपकी soil erosion का एक कारण बनते हैं. If the field are plowed along the slope, there is no obstruction to flow of water and water washes away the topsoil easily. यानी कि अगर खेत को आप जो है उसकी टीलिंग जो कर रहे हैं, यानी कि उसको आप जो है जोत जो रहे हैं, अगर आप उसको स्लोप के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा उसका ढलान है उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको स्लोप कर दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको फ्लो कर दिया, तो क्या होगा? देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ वाटर. तो वाटर का जो फ्लो है उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी, हिंड्रेंसेस नहीं आएगा, बैरियर नहीं आएगा, जिससे वाटर जो है
वहां की टॉप सॉइल को इजीली अपने साथ बहाकर ले जा सकता है। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री द सेम क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर विच स्पॉइल द केमिकल बैलेंस ऑफ द सॉइल। दूसरा क्या रीजन है आपका कि हम क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम एक ही प्रकार की एग्रीकल्चर को, एक ही प्रकार की खेती को जो है, एक ही प्रकार की क्रॉप को हम जो है हर साल करते रहते हैं, जिससे सॉइल का केमिकल बैलेंस जो है वो डगमगा जाता है, गिर जाता है, यानी कि उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। दिस सॉइल इज एग्जॉस्टेड एंड इज इजीली इरोडेड बाय द विंड और वाटर, जिसकी वजह से ये सॉइल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है और इजीली जो है विंड और वाटर के द्वारा इरोड हो जाती है। ऐसे ही प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। Another outstanding example of faulty method of agriculture is the shifting cultivation, practiced in some areas in the northeastern state of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, त्रिपुरा, मिजोरम एज वेल एज इन ओडिशा। तो इन स्टेट्स में आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है एंड यू नो वेरी वेल द हजार्ड्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो द faulty method of agriculture is also responsible for the soil erosion. And last human made factor is the malpractices in the land utilization pattern. Malpractices in land utilization patterns such as faulty methods of irrigation, successive growing of crops, removal of soil organic matter and other valuable plant food material by burning and injudicious cropping practices, यानी कि मल प्रैक्टिसेस, हम जब जो है अच्छी प्रकार से अपनी लैंड को यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसका हम दुरुपयोग करते हैं। कैसे दुरुपयोग करते हैं? जैसे कि फोल्टिंग मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के फोल्टिंग मेथड को अडॉप्ट करके, सक्सेसिव ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि हमारे ग्रैंडफादर भी वही क्रॉप कर रहे थे, आगे हमारे फादर ने भी वही की, हम भी वही कर रहे हैं और आगे हमारी जो संतानें आएंगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो भी उसी प्रकार की क्रॉप को करेगी। जैसे अगर हम अपने ही रीजन का एग्जांपल लें तो आपने देखा होगा यहाँ पे राइस और व्हीट दो मेन क्रॉप्स हैं, यानी कि हम उन्हीं क्रॉप्स को जो है ग्रो कर रहे हैं। सो दैट इज द मल प्रैक्टिसेस इन द लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि हम क्रॉप रोटेशन प्रॉपर मेथड से यूज नहीं कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सोइल के जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो उसकी फर्टिलिटी को जो है मेंटेन रखते हैं, हम उनको रिमूव कर देते हैं। कैसे? एंड अदर वैल्यूएबल प्लांट मटेरियल बाय बर्निंग एंड इनजुडिशियस क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि हम या तो खेतों में जो है क्रॉप जैसे हम उगाते हैं उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे जो उसके जो नेचुरल जो आपके बैक्टीरिया हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ह्यूमस कंटेंट जो है उसका डैमेज हो जाता है। या इनजुडिशियस क्रॉपिंग प्रैक्टिस, या हम जो है प्रॉपर जो है क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं कि कौन सी खेती के बाद, कौन सी क्रॉप के बाद दूसरी ऐसी क्रॉप ग्रो करें कि उसमें जो है न्यूट्रिएंट भी आपके जो है बनते रहें। Among the primitive people, the system of agriculture affect their whole system of life. तो अगर हम primitive point of view से भी देखें, primitive people के point of view से भी देखें, तो agriculture जो है हमारे पूरे के पूरे जीवन को जो है प्रभावित करता है। So these are the 6 factors that are responsible for the soil erosion. So these are the different causes of the soil erosion. In the causes of the soil erosion, I told you about the 2 factors. The very first is natural factor and second is the man-made factors. Now, the last concept of this chapter is conservation of soil from erosion. So, how we can save the soil, how we can conserve the soil from the erosion. My dear student, as you are aware, there are a number of causes of the soil erosion. So, if we remove that causes, that are the conservative methods of the soil erosion. So our next concept is the conservation of soil from erosion, or what are the different methods to save the soil from the erosion. So the very first is afforestation. In the causes, we discuss about the deforestation. Deforestation means cut the forest. So what is the opposite of deforestation? Afforestation. Afforestation means plant more and more tree, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए. So the best way to conserve soil is to increase the area under forest. Indiscriminate felling of trees should be stopped and efforts should be made to plant tree in new area. यानी कि सबसे अच्छा मेथड है
कि फॉरेस्ट का जो हमारा एरिया है उसको हमको बढ़ाना चाहिए, यानी कि हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और दूसरा इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्री, यानी कि हम जो इनडिस्क्रिमिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीज को काट रहे हैं, कट कर रहे हैं, उनको जो है हमको स्टॉप करना चाहिए। और हमारा एफर्ट ये होना चाहिए कि जितने भी नए एरिया हैं या पुराने एरिया हैं वहां पे हमको ज्यादा से ज्यादा वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्री इन दिस एरिया। सेकेंड रीजन इज रिस्ट्रिक्टिंग ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। जैसे हमने एक कोज पढ़ा था कि जब हम ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो उसकी वजह से सोइल पार्टिकल लूज हो जाते हैं। तो उसका कंजर्वेटिव मेथड क्या होगा? रिस्ट्रिक्टिंग ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो पास्चर की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही एनिमल्स की ग्रेजिंग कराई जानी चाहिए। सो व्हाट हैपन हियर, during the long dry period, grass is grazed to the ground and torn out by the roots by the animals. This leads to the loosening of soil and it is easily washed away by rains. So you know very well about this factor. So what we should do, animals should be moved over different pasture, कि एनिमल जो है अलग अलग चारागाह पे लेके जाने चाहिए, so as to avoid soil erosion of the soil, ताकि हम soil erosion को जो है बचा सके, यानी कि सोइल को इरोड होने से बचा सके। क्योंकि अगर अलग अलग पास्चर पे लेके जाएंगे तो जो दूसरी पास्चर है उनकी ग्रास जो है, उनकी रूट जो है वो मेंटेन रहेंगी, वहां पे सोइल पार्टिकल आपके लूज नहीं होंगे। और इसमें एक बेस्ट मेथड हम ये भी कर सकते हैं, वी हैव टू ग्रेज द एनिमल अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द पास्चर, यानी कि अगर एक पास्चर है उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 एनिमल्स की है तो वहां पे 100 एनिमल ही ग्रेजिंग के लिए जाने चाहिए। वहां पे 200 एनिमल जाएंगे तो वहां की ग्रास खत्म हो जाएगी और वहां पे सोइल इरोजन आपका बहुत जल्दी जो है वो आपका फैलने लगेगा। नेक्स्ट इज अवर कंटूर प्लॉइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंटूर प्लॉइंग। सो द बेस्ट मेथड टू सेव द soil from the erosion is the contour plowing. First of all, you have to be know about the what do you mean by contour. Contour means a line drawn on a map connecting point of equal height. यानी कि जब आप इक्वल हाइट के दो पॉइंट को एक लाइन से कनेक्ट करते हैं, दो इक्वल हाइट के, यानी कि दो जगह है वो इक्वल हाइट पे है, उन दो जगहों को जब आप आपस में कनेक्ट करते हैं एक लाइन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं बेटा कंटूर। हैव ए लुक ऑन दिस पिक्चर। हियर यू आर वॉचिंग दैट दीज आर द हाइट प्लेसेस। यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपके जो है हाई पॉइंटेड है। आपने ये देखा होगा कि ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो आपके एक ही हाइट पे जो है आपके मिल रहे हैं। तो अगर एक ही हाइट पे आपके ये मिल रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? कंटूर। अब बात आई है कंटूर प्लोइंग, यानी कि खेतों को जो प्लोइंग होना चाहिए वो कंटूर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ द प्लेस, यानी कि जो आपका प्लेस है उसकी स्लोप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इससे क्या होगा? प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइन डज नॉट लेट वाटर रन डाउन द स्लोप, यानी कि जब आप इन कंटूर लाइन के अकॉर्डिंग फ्लो करोगे तो ये वाटर को जो है स्लोप के नीचे नहीं जाने देगा। दिस टेक्निक इन्वॉल्व फ्लोइंग अलोंग द कंटूर। ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक ये कंटूर के अकॉर्डिंग जो आपकी फ्लोइंग करने से बनती है, सो दैट फ्यूरोज फ्लो लाइन लिंकिंग पॉइंट्स ऑफ द सेम हाइट। यानी कि इसमें क्या है कि फ्यूरो क्या होता है बेटा? आपका एक एज लॉन्ग सेलो ट्रेंच इन द ग्राउंड, यानी कि जब आप ग्राउंड के अंदर एक कम डेप्थ का जो है गड्ढा बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रेंच। अब आपने देखा होगा यहाँ पे कि ये जो बीच का जो एरिया है, यहाँ पे आपके ड्रेंचेस बनाए हुए हैं, गड्ढे बनाए हुए हैं, यानी कि ऊपर जो है ये आपकी क्रॉप्स है, दीज आर योर क्रॉप्स, ये आपकी क्रॉप्स यहाँ पे बनाई गई है और ये बीच में गड्ढे बनाए गए हैं बेटा आपके इस तरह से। तो ऊपर हाइट से जो आपका वाटर आएगा वो इन ड्रेंचेस से होता हुआ, इन फ्यूरोज से होता हुआ जो है आपका जो है नीचे चला जाएगा, जिससे आपका कम सोइल इरोजन होगा। So such furrows hold the downwards flow of the water. तो इस तरह की जो फ्यूरोज हैं, इस तरह के जो ट्रेंचेस हैं, वो क्या करते हैं? होल्ड, यानी कि स्टॉप करते हैं किसको? डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, पानी के नीचे की ओर बहाव को, एंड रिड्यूस इरोजन, और इरोजन को कम करते हैं। कंटूर फ्लोइंग फॉलोज द नेचुरल स्लोप ऑफ द स्लोप, नेचुरल शेप ऑफ द स्लोप विदाउट ऑल्टरिंग इट। यानी कि इसमें क्या होता है
कि जो कंटूर जो प्लोइंग है, इसमें हम जो आपका ग्राउंड है, जो आपकी लैंड है, उसकी नेचुरल शेप में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते। ये आपने विशेष ध्यान रखना है कि जो आपकी नेचुरल शेप होगी उसमें हम किसी भी प्रकार का जो है चेंज नहीं करेंगे, उसमें हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते। आपने देखा होगा, ये देखिए, ये एक नेचुरल स्लोप है आपकी, ये एक नेचुरल स्लोप है आपकी, इस तरह से। ये जो आपकी नेचुरल स्लोप है, यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया, बल्कि इस स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्यूरोज बनाई है, नालियां बनाई हैं, ट्रेंचेस बनाए हैं, ताकि पानी जो है इधर से होता हुआ आराम से जो है आपका निकल जाए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, वाटर का जो अमाउंट है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, फिर आपका यहाँ पे करेगा, फिर आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपका स्ट्राइक करेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, और फिर आराम से यहाँ से निकल जाएगा। और अगर बाय द वे ये ट्रेंचेस ना होते तो वाटर इसके पूरे एरिया के ऊपर से जाना होता, और पूरे एरिया के ऊपर से जाना होता तो उसको कहीं पे भी बैरियर नहीं मिलता, जिससे उसकी वेलोसिटी जो है और बढ़ जाती, और जब वेलोसिटी बढ़ जाती तो वो सोइल इरोजन का कारण बनता। सिंपल सी एक बात है बेटा, कंटूर प्लोइंग में लास्ट लाइन को आपने ध्यान में देना है, कंटूर प्लोइंग फॉलो द नेचुरल शेप ऑफ द स्लोप विदाउट ऑल्टरिंग इट, विदाउट चेंजिंग इट, यानी कि हम नेचुरल स्लोप के अकॉर्डिंग इसको फ्लो करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का चेंज हम नहीं करते हैं। यहाँ पे भी आप पिक्चर्स देख लीजिए, इस तरह से जो इसकी नेचुरल शेप है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने जो है यहाँ पे जो है आपका जो है उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग जो हमने जो है फ्यूरोज बनाई हुई है, ट्रेंचेस बनाए हुए हैं, और इन ट्रेंचेस से जो है वाटर आपका चला जाता है। इन ट्रेंचेस का ये फायदा होता है कि ये आपके वाटर फ्लो को डिसेलिरेट कर देता है, यानी कि उसकी स्पीड को कम कर देता है। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका टेरेस कल्टीवेशन। कंटूर प्लोइंग ज्यादातर आपकी हिली एरिया में आपकी सक्सेसफुल है, और ऐसे ही आपका टेरेस कल्टीवेशन जो है वो भी आपका जो है हिली एरिया में आपका होता है। टेरेस को अगर हम हिंदी में कहें तो हम इसको कहेंगे सीढ़ी नुमा खेत। कंटूर प्लोइंग में क्या था कि जो आपकी नेचुरल शेप थी उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, जबकि टेरेस में क्या करते हैं, हम जो उसकी नेचुरल शेप होती है उसमें हम जो है चेंज करते हैं। हैव ए लुक हियर, टेरेस कल्टीवेशन इज अ वेरी इफेक्टिव एंड one of the oldest method of soil conservation. Hill slope is cut into number of terraces. अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो हिल स्लोप होती है, पहाड़ी जो होती है, पहाड़ जो होते हैं उनको कट किया जाता है इनटू नंबर ऑफ टेरेसेस, अलग अलग टेरेसेस में। यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी एक स्लोप है, ये आपकी एक हिल है, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पहाड़ को जो है काट दिया है और यहाँ पे टेरेसेस बना दिए, सीढ़ियां बना दी हैं। सो टेरेसेस into the terraces having horizontal top, इनका जो टॉप होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि ऐसे होता है आपका। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो टॉप है आपका ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, आपका लेटा हुआ है आपका, एंड स्टीप स्लोप ऑन दी बैक एंड फ्रंट। और अगर हम इसके बैक पे देखें यानी कि पीछे की साइड में देखें, और ये आगे की साइड में ये एरिया आप देखें तो यहाँ पे जो आपकी स्लोप होती है। In other words, we can say that terrace cultivation alter the shape of the slope to produce flat area that provide a catchment for water and a solid area for crop growth. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि टेरेस कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, जो स्लोप होती है, जो पहाड़ की चोटी होती है, जो उनकी ढलान होती है, उनकी शेप को हम ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं टू प्रोड्यूस फ्लैट एरिया। क्यों कर देते हैं, ताकि हमको एक फ्लैट एरिया मिल जाए, ताकि हम उस पर खेती कर सकें। दैट प्रोवाइड अ कैचमेंट फॉर वाटर, इससे क्या होगा, इसको एक कैचमेंट एरिया मिल जाएगा जहां से इसको पानी मिल सके, एंड अ सॉलिड एरिया फॉर क्रॉप ग्रोथ, और क्रॉप ग्रोथ के लिए इसको एक सॉलिड एरिया मिल सके। आपने अपने घरों में देखा होगा कि सीढ़ियां बनाते हैं, वो सेम तरह का पैटर्न आपका हिली एरिया में आपका चलता है, यानी कि इसी प्रकार से आपका होता है। आपकी सीढ़ियां होती है, फ्लैट एरिया होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, और आगे का जो एरिया होता है, आगे का जो एरिया होता है वो स्लोप साइड में आपका होता है। आपने कई बार जो है माउंटेन एरिया की विजिट भी की होगी, मेरे साथ ट्रिप्स टूर भी किए होंगे, उनमें भी आपने देखा होगा कि वहां पे जो सीढ़ी नुमा खेत है वो इसी प्रकार से आपके होते हैं। फॉर द क्रॉप ग्रोथ, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। हमारा जो वेस्टर्न, पश्चिमी और आपका सेंट्रल हिमालयाज है, वहां पे इसी प्रकार की टेरेस फार्मिंग आपकी की जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा,
ये आपका पहाड़ी एरिया है, इस पहाड़ी एरिया को कट किया गया है, एक फ्लैट एरिया यहाँ पे आपका जो है लिया गया है। और अगर आप इसका ये वाला पोर्शन देखें तो ये आपका स्लोप है, आपका स्टीप स्लोप है, यानी कि ये ढलानदार है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये फ्लैट बना दिया, फिर ये ढलानदार हो गया, फिर ये आपका फ्लैट है, फिर ये ढलानदार हो गया। तो इस प्रकार से जो आपके सीढ़ी नुमा खेत जो है वो टेरेस जो कल्टीवेशन है वो हिली एरिया में आपकी की जाती है। नेक्स्ट एंड फिफ्थ मेथड इज अवर स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है बेटा, यानी कि हम क्या करते हैं, स्ट्रिप छोड़ देते हैं। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप, कि जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें हम स्ट्रिप छोड़ देते हैं, एक छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो छोड़ देते हैं। स्ट्रिप वैसे ही बोलते हैं पट्टी, एक एरिया, उसको हम छोड़ देते हैं। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स, और जो क्रॉप्स होती है उनके बीच में हम जो है ग्रास की स्ट्रिप बना देते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये क्रॉप जो है वो ग्रोन की जा रही है, यहाँ पे भी आपकी क्रॉप को जो है ग्रो किया जा रहा है, और बीच में ये खाली जगह छोड़ दी है, यहाँ पे हमारी ग्रास जो है वो उगाई जा रही है। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड, इससे क्या होगा कि विंड की जो फोर्स है वो आपकी कम हो जाएगी। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये जो आपका जो है डेजर्टिक एरिया में जो है जहाँ पे सोइल पार्टिकल लूज होते हैं उन एरिया में आपका किया जाता है, ताकि जो है हवा अपने साथ जो है सोइल पार्टिकल को उड़ाकर ना ले जा सके। यहाँ पे ये सॉलिड हो जाएगा, ग्रास जो है इसको जो है आपका जो है इसको जो है ग्रास जो है इसको जो है आपका जो है सोइल पार्टिकल को बाइंड करके रखेगी। तो इससे क्रॉप्स का भी नुकसान कम होगा और आपका सोइल का भी जो है नुकसान नहीं होगा। सो दिस इज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट इज अवर प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट भी आपका अलग अलग एरिया में किया जाता है, डेजर्टिक एरिया में भी किया जाता है, सिंपल जो हमारे एरियाज है आजकल वहां पे भी किया जाने लगा है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन सिमिलर वे, यानी कि जैसे हम स्ट्रिप क्रॉपिंग में करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, खेतों के बीच में घास की स्ट्रिप उगा देते हैं। लेकिन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है, टू प्लांट द ट्रीज इन अ रो, यानी कि जब आप एक लाइन में ट्रीज को उगा देते हैं, दैट इज द शेल्टर बेल्ट। सो प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे, वो भी आपका जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग की तरह ही काम करता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कोल्ड शेल्टर बेल्ट, इस तरह के ट्रीज की जो रो होती हैं, जो लाइंस होती हैं, उनको हम शेल्टर बेल्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक खेत के चारों ओर जो है आपके जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो इसको हम कहेंगे शेल्टर बेल्ट। आप जो है वेस्टर्न यूपी में भी जो है इस प्रकार के पॉइंट्स को देख सकते हैं। ये क्या करता है, these shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in the western India, यानी कि जो डेजर्टिक एरिया है वहां पे सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करता है, स्थिर करता है, क्योंकि ये आपकी जो विंड है उसकी वेलोसिटी को कम करता है। और वेस्टर्न इंडिया में का जो डेजर्टिक एरिया है, यानी कि जो सैंड का एरिया है, उसको वहां पे भी ये जो है ज्यादातर कामयाब सक्सेसफुल रहा है। नेक्स्ट मेथड इज अवर प्रॉपर मेथड्स ऑफ फार्मिंग। हमको जो है जैसे मैं हमने एक क्वेश्चन किया था फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि प्रॉपर आपके जो है फार्मिंग मेथड अडॉप्ट किए जाने चाहिए। कैसे, सोइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। सोइल इरोजन जो है डिफेक्टिव मेथड से भी होता है, जैसे कि प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, जैसे कि आप रॉन्ग वे से जो है प्लोइंग कर रहे हो, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द सोइल इरोजन, यानी कि स्लोप आपकी आपने उसी स्लोप के अकॉर्डिंग जो है अप एंड डाउन आपने जो है जैसे ऐसे और ऐसे आपने जो है क्या किया, फ्लो कर दिया, तो उससे क्या होगा, जो ऊपर से जो आपका पानी है, ऊपर से जो आपका ऐसे वाटर है वो फ्लो के साथ आएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और सोइल इरोजन हो जाएगा। सो फार्मर शुड यूज राइट वे ऑफ फ्लोइंग। राइट वे ऑफ फ्लोइंग क्या है बेटा आपके, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कंटूर फ्लोइंग, कंटूर फ्लोइंग आपका राइट वे है, उस वे से आपका जो है होना चाहिए, तो उस तरह से होना चाहिए। रिड्यूस टिलेज, हम खेतों को बार बार जो है टिलेज करते हैं, बार बार उनकी प्लोइंग करते हैं, जिससे जो सोइल की स्ट्रक्चर जो है वो बार बार टूटती है, तो हमको जो टिलेज है वो कम करनी चाहिए। यूसेज प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड अडॉप्ट मल्चिंग, हमको जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है वो आपके जो है एक प्रॉपर अमाउंट में यूज करने चाहिए, और साथ ही साथ जो है अडॉप्ट मल्चिंग, हमको मल्चिंग जो है
वो भी अडॉप्ट करनी चाहिए। मल्चिंग का मतलब क्या है कि जो आपकी खाली जमीन पड़ी हुई है उसके ऊपर घास फूस डाल देना, ताकि उस सॉइल का जो है मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रह सके। दैट इज नोन एज मल्चिंग, उसको हम मल्चिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज अवर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी एक आपका अच्छा सॉल्यूशन है आपकी सॉइल को इरोजन से बचाने के लिए। So plenty of crop rotation is crucial for keeping land happy and healthy. This allows organic matter to build up, making future plantings more fertile. यानी कि ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को बिल्डअप रखेगा और फ्यूचर जो प्लांटिंग है उसके लिए जो है आपको जो है फर्टाइल सॉइल भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज अवर कंट्रोल ऑन माइनिंग। एज आई टोल्ड यू दैट द due to the mining there are many harmful elements that are produced by the mining, so they contaminated the surrounding area. वो आपके सराउंडिंग एरिया को जो है कंटेमिनेट कर देते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द माइनिंग शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। आपको जो है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपका जो है माइनिंग से जो आपका आ रहा है उस वेस्ट प्रोडक्ट को जो है हमको जो है पहले जो है एक अच्छी प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। उसके डिस्पोजल के जो है हमको अलग अलग मेथड अडॉप्ट करने चाहिए ताकि सॉइल को जो है कंटेमिनेट होने से और इरोड होने से बचाया जा सके। ऐसे ही आपका आता है केयरफुल टीलिंग। टीलिंग का मतलब होता है बेटा प्लोइंग दी सॉइल। आप क्या करते हैं कि कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले खेत को जो है आप टीलिंग करते हैं, यानी कि मिट्टी को जोतते हैं। ट्रैक्टर की सहायता से लगा लो, डिफरेंट इक्विपमेंट की सहायता से लगा लो। सो बिकॉज टीलिंग एक्टिविटी ब्रेक्स अप द सॉइल स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है कि सॉइल की जो स्ट्रक्चर है वो टूटती है। डूइंग लेस टीलिंग, हालांकि टीलिंग के बिना आप खेती नहीं कर सकते, लेकिन आप एक मेथड जरूर अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम जो है लेस टीलिंग कर सकते हैं, कम से कम जो है खेत को प्लो कर सकते हैं। विद फ्यूअर पासेज विल प्रिजर्व मोर द क्रूशल टॉप सॉइल। यानी कि जब आप इस तरह का कार्य करते हैं, लेस टीलिंग जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है, ए फ्यूअर पासेज ए कपल ऑफ विल प्रिजर्व, उससे जो है कुछ मात्रा में जो सॉइल आपकी वो प्रिजर्व रह जाएगी, मोर ऑफ द क्रूशल टॉप सॉइल, और ज्यादातर जो आपकी टॉप सॉइल है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो आपकी सेफ रह जाती है। Our next point is water control. As the water is also responsible for the soil erosion, so how we can get control on the speed of the water? For those areas where soil erosion is predominantly caused by water, यानी कि ऐसे एरिया जहां पे आपका जो सोइल इरोजन होता है वो वाटर की वजह से होता है, वेदर नेचुरल, चाहे वो नेचुरल हो यानी कि फ्लड वगैरह से हुआ हो, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा का रीजन आपने पढ़ा होगा, गंगा का रीजन आपका, यमुना रिवर का रीजन आपका, यहाँ पे फ्लड आती है आपकी, तो नेचुरल कोज आपका, और मैन मेड या आपका प्रॉपर इरिगेशन मेथड नहीं है, मैन मेड कोजिज आपका। तो इससे क्या होता है आपका, चाहे किसी भी प्रकार का कोजिज आपका, तो इस प्रकार के आपके ये जो कोजिज है इससे हमको जो है सोइल को इरोजन से बचाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, specialized chutes and runoff pipe can help to direct these water sources away from the susceptible areas. इससे क्या होगा कि स्पेशल शूट्स, हमको जो स्पेशल शूट्स यानी कि जो वाटर है उसको शूट्स, आपने पैराशूट का नाम सुना होगा, पैराशूट का क्या मतलब होता है, ऊंचे से नीचे की ओर लेके आना। तो स्पेशलाइज शूट्स यानी कि वाटर को डिसेंड करना चाहिए, उसकी वेलोसिटी को कम करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, रन ऑफ पाइप्स, यानी कि पहले हम क्या करते थे, ट्रेंचेज बनाते थे, फ्यूरोज बनाते थे खेतों में। आजकल क्या होता है, हम जमीन के अंदर पाइप को दबा देते हैं। तो पाइप ऑफ, हमको रन ऑफ पाइप का प्रयोग जो है वो करना चाहिए टू डायरेक्टली वाटर सोर्सेज अवे फ्रॉम दी ससेप्टिबल एरिया, यानी कि ऐसे एरिया में जहां पे वाटर जो है आपका जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हो, जहां पे ज्यादा आपका इरोजन होता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा रीजन है आपका, तो इस प्रकार के एरिया में हमको जो है पाइप सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे जो ससेप्टिबल एरिया है, जो आपका अति संवेदनशील जो है, जो आपका सेंसिटिव एरिया जो है, उनको जो है वहां पे वाटर का फ्लो हम कम कर सकें। हेल्पिंग स्टेप ऑफ एक्सेस इरोजन, इससे जो है हमारा जो है हम सोइल इरोजन से जो है बच सकते हैं। स्टेव ऑफ मींस
उसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। हैविंग दीज फिल्टर इन पर्टिकुलर एरियाज rather than leading to natural body of water is a focus to reduce erosion। यानी कि हमको जो है इस प्रकार के फिल्टर्स का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो है नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर है जो आपका सोइल इरोजन को जो बढ़ावा देते हैं उससे हम जो है बच सकें। एंड लास्ट इज अवर इंक्रीज नॉलेज। सबसे जरूरी बात बेटा, किसानों का नॉलेज जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। ए मेजर फैक्टर फॉर प्रिवेंटिंग soil erosion is educating more and more people who work with land on। यानी कि जो लैंड के साथ काम कर रहे हैं, जो सोइल के साथ आपका कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को हमको जो है शिक्षित करना चाहिए। Why it is a concern, ये हमारे लिए एक कंसर्न क्यों है, ये हमारे लिए एक इशू क्यों है, एंड व्हाट दे कैन डू टू हेल्प रिड्यूस इट, और वो हमारी क्या सहायता कर सकते हैं कैसे। दिस मीन्स आउटरीच टू फार्मर इन ससेप्टिबल एरिया फॉर वेज that they can help protect crop from inclement weather and or ways that they can help make sure their soil remains compact without restricting their plant growing activity। यानी कि इसमें हमारा क्या हो सकता है कि जो सेंसिटिव एरिया है वहां के किसानों से बात करनी चाहिए ताकि जो वेदर इनक्लीमेंट, जो बुरे वेदर है, यानी कि वेदर को आप नहीं रोक सकते, वहां से लोगों की आप हेल्प कर सकें और साथ ही साथ ये आप जो है श्योर कर सकें कि प्लांट को जो है बिना किसी डैमेज के, बिना किसी जो है सोइल इरोजन के कंपैक्ट फर्मली सोइल को इरोड होने से बचाने के लिए हम जो कैसे जो है अलग अलग एक्टिविटी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर chapter 1 resources and development। we have discussed all the points here। so if you have still any problem you can ask me through the WhatsApp, and we have completed this chapter today। so if you have still any problem please convey me your message through the WhatsApp। thank you, have a nice day, God bless you, stay healthy, stay safe, God bless you my dear students, thank you beta।